edutainment. Yes, edutainment. Edutainment means to educate about the entertainment. Today our topic is Rag Ek, Rang Anek. Rag is a melodic framework for improvisation akin to a melodic mode in Indian classical music. While the rag is a remarkable and central features of the classical music tradition, it has no direct translation to concepts in the classical European music tradition. Each rag is an array of melodic structures with musical motifs considered in the Indian tradition to have the ability to color the mind and affect the emotions of the audience. Each rag provides the musicians with a musical framework within which to improvise. The specific notes within a rag can be recorded and improvised by the musician. Rags range from small rags like Bahar and Sahana that are not much more than songs to big rags like Malkhons, Darbari and Yaman, which have great scope for improvisation and for which performances can last over an hour. Rags may change over time, with an example being Marwa, the primary development of which has gone down to the lower octave compared to the traditional middle octave. Each rag traditionally has an emotional significance and symbolic associations such as with season, time and mood. The rag is considered a means in Indian musical tradition to evoke certain feelings in an audience. Hundreds of rags are recognized in the classical tradition, of which about 30 are common. There are two main classical music traditions, Hindustani, North Indian, and Carnatic, South Indian, and the concept of rag is shared by both. Rag are also found in Sikh traditions such as in Guru Granth Sahib, the primary scripture of Sikhism. Similarly, it is a part of the Qawwali tradition found in Sufi Islamic communities of South Asia. Some popular Indian film songs and ghazals use rags in their compositions. The roots of Indian classical music can be traced back nearly 2000 years to its origin in the Vedic hymns of the Hindu temples, the fundamental source of all Indian music. Later on, many musical varieties like music for dance, music for instrument, music for vocal rendering, etc. got evolved. So in practice, some musicologists gave importance of tal, some gave importance to swars, and some to purity of rags. Rag Yaman emerged from the parent musical scale of Kalyan, considered to be one of the most fundamental rags in Hindustani tradition. It is thus often one of the first rags taught to students. Rag Yaman expresses the ultimate humility. The rag has an untainted appeal or urge of shaking off ego, haughtiness, and arrogance. One can completely surrender one's soul to the ultimate through immersing in the ecstatic melody of Yaman. Prayer and love are complementarily expressed through the rendition of the rag, just like the inseparable connection between the moon and moonbeam or between fish and water. Both the artists and the audience can reach the absolute nothingness through mediating the rag. Yaman is called the king of the entire rag. Yaman means the full moon. Hazrat Amir Khusro composed the rag at the time of Khilji dynasty. Rag Yaman is performed at a time when the nature or the universe creates an ambience of complete surrender to the ultimate after a hectic day. The ras of Yaman emits when the nature takes all the living being in her lap with kindness and generosity. Yaman is a rag through which one can purify oneself with the holy hum of evening prayer at a mosque, temple, pagoda or church. Rag Yaman is an evening rag which is romantic in nature. Some says its origin is from the Persian mode E-man, from which Yaman was derived.
Others say it has Vedic origins as Rag Yamuna, which over time altered as Yaman. Rag Yaman generates bhakti, gambhir, shringar, and suggestive ras. And today we have a very, very talented, very experienced, learned सुरमणि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी इज विथ अस. आपका बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव चतुर्वेदी जी. सुरमणि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी बिलोंग्स टू ध्रुपद वोकलिस्ट दरभंगा घराना. ही इज टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो. ही इज द डिसाइपल ऑफ लेट पंडित विधुर मलिक जी अंडर गुरु शिष्य परंपरा. हिज अदर गुरुज वर श्री हरदेव चतुर्वेदी, लेट पंडित रामचंद्र मुंगा जी, late Pandit Keshav Dev Chaturvedi ji, Shri Anand Bihari Telang. I will like to mention that he was also my guru. Shri Vishnu Kumar Kapoor, Shri S.L. Kandara, and Padam Shri late Kalyanji Bhai. He is a singer of Khandar Vani and Govardhan Vani. His voice holds melody, sweetness of the swar creates a magical atmosphere, while with his pronunciation of the words and difficult lakris and thayyas is highly appreciated by all. He has also composed many bandishes. He has proved his skills in Haveli Sangeet, Khayal, Chumri, Chappa, Ghazals and Bhajans, etc. He has given his voice as a playback singer in many films such as Ragini, MMS, The Spirit of India, My Friend Ganesha, Paisa Vasool, Daman, Brijka, Birju, etc. He has also given his voice in many serials such as Maharana Pratap, Devon ke Dev Mahadev, Lo Ho Gayi Pooja Is Ghar Ki, Kumkum, Sarthi, Teen Bahu Raniya, Mati ke Lal, Siya ke Ram, etc. आपका बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव चतुर्वेदी जी. आज आप राग यमन आपने जो शुरुआत करी है तो उसके बारे में आप किस तरह शुरू करना चाहते हैं. शुरुआत आप अब प्रोग्राम आपको पर है, शुरू करें. थैंक यू लाल गोयल साहब. और आपके संग जो तबले पे संगत दे रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूं. आपका नाम है तबला उस्ताद ताहिर हुसैन खान जी. आप भी मुंबई से हैं. सबसे पहले इनका आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि राग एक रंग अनेक. तो आज हम राग यमन के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं और राग के बारे में, राग यमन के बारे में यही बतलाना चाहूँगा क्योंकि ये रागों का राजा माना जाता है. और राग की जो परिभाषा है, हमारे गुरु जी ने एक सेंटेंस में रागेति इति रंजत, इतनी सी लाइन में रागेति इति रंजत, राग वो जो सबके मन को, अपने मन को खुश करे, जो रंजकता मतलब खुशी दे, वो राग है. तो राग यमन जो है वो शाम को गाया जाता है ऐसे तो, लेकिन आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए मुझे अभी गाना पड़ रहा है राग. तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ध्रुपद गायक हूँ तो ध्रुपद के हिसाब से एक हम पहले एक बंदिश उसमें शुरू करेंगे. गणपति गौरी सुत, भगवान गणपति से हम शुरू करेंगे. फिर राग यमन में कितने सारे गाने, कितने गजल सम्राट मेहदी हसन साहब हैं, वो सब मैं आपको थोड़ा सुनाने वाला हूँ. तो हम राग यमन शुरू करते हैं. ये बंदिश सूल ताल में है, 10 मात्रा में. इसके साथ में पखावज बजती है हमारे ध्रुपद गायन के साथ, लेकिन आज हमारे ताहिर भाई हमारे साथ में तबले पर संगत करेंगे.
रे रे न रे रे न रे 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 ना ता रे रे री रे रे ना रे न रे न रे 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 ना रे 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 नो नो रे ना 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 रे रे ना ना रे 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 ना रे 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 नो रे ना ना रे 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 नो नो गणपत गोरी तोत 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 एक दंत गुण निदान एक दंत गुण निदान महाबली विघ्न हरन गणपत गोरी तोत गणपत अष्ट सिद्धि नायक नायक अष्ट सिद्धि नायक जन सुखदायक जन सुखदायक राजत वेद परन गणपति गोरी तोत गणपति 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 गोरी तोत गणपति 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 गोरी गणपति गोरी सुत एक दंत गुण निदान महाबली विघ्न हरन गण गणपति गोरी तोत गणपति गणपति गोरी तोत एक दंत गुण निदान निदान गणपति गण अति सुंदर सुखदेव चतुर्वेदी जी, बहुत ही सुंदर आपका है। और हमें पहला मैसेज भी मिल चुका है। दिव्यपाल शर्मा जी लिख रहे हैं, वेरी गुड ओपनिंग ऑफ द डे। बहुत शुरुआत आज के दिन की आपने बहुत अच्छी की है। अब आप क्या सुनाना चाहेंगे? इसके बाद में अब हम जैसे राग एक रंग अनेक, तो राग यमन में से राग तो एक ही है यमन, लेकिन उसमें से कितने सारे गाने, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हों, चाहे वो रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, चाहे अमीर खुसरो साहब का जो कलाम है। तो पहले मैं वो सुनाऊंगा, छाप तिलक सब छीनी दे, ये सूफी सॉन्ग है, इसको मैं सुनाऊंगा। सफेद
रे रे ना ना रे ना ना। खुशरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, मन मोरा तन पियो का, दोनों भये एक रंग। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दोने ना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई की, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझे नैना 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 मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, नैना 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 नैना। छाप तिलक छाप तिलक छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजबा, बल बल जाऊं मैं, बल जाऊं बल जाऊं, बल बल जाऊं तोरे रंग रेजबा, तोरे रंग रेजबा, तोरे रंग रेजबा। अपनी सी रंग दी नीले मुझे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। बहुत 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 खूब चतुर्वेदी जी, बहुत ही अच्छा आपने गाया। और आराधना श्रीवास्तव जी का मैसेज है, वाह क्या बात है गुरुजी। रवि शर्मा जी का मैसेज है, वाह वाह बहुत खूब। और आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, इफ एनीवन वांट्स टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जॉइन पंडित सुखदेव म्यूजिक गुरुकुल। फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट 9820160066 and another number is 9920160066. Email psmgurukul@gmail.com. अब आप चतुर्वेदी जी क्या सुनाना चाहेंगे? हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हम सबसे कहेंगे कि आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, जितने भेजेंगे हम उसको बताते रहेंगे, जिससे कि कलाकारों का, हमारे चतुर्वेदी जी का और तबला पे जो हमारे उस्ताद साहब हैं, सबका बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। हाँ चतुर्वेदी जी क्या सुनाएंगे अब? हमें मेहदी हसन साहब जो गजल सम्राट माने जाते हैं, उनकी एक जो बड़ी फेमस गजल है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, ये फराज अहमद साहब का लिखा हुआ कलाम है, इसको मैं सुनाना चाहूंगा। तो एक शेर इससे पहले अर्ज है,
बचपन में था ये वादा मिलेंगे शबाब में, बचपन में था ये वादा मिलेंगे शबाब में, आया शबाब उन पे तो बैठे नकाब में, आईना भी उन पे शैदा हो गया, लो एक दुश्मन और पैदा हो गया, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, पहली से मरा न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरा न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया की निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। बहुत खूब, बहुत खूब। मैसेज आ रहे हैं लगातार। डीजे बास बंदिश साहब का कहना है अमेजिंग। रवि शर्मा लिख रहे हैं आहा क्या बात गोयल साहब, व्हाट ए पिक। रवि शर्मा जी ये मेरा नहीं है, ये तो कलाकार हैं, हिंदुस्तान की देन है, इतने ज्यादा कलाकार हैं हिंदुस्तान में, और हमारी बस ये प्रयास होता है कि उन कलाकारों को हम आपके सामने लाएं। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये जो कलाकार हैं, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं बिना किसी चार्ज के कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि, और सबको पता है, उन्हें पता है कि आज सब कोविड-19 से कितने परेशान हैं, तो एक वो आपको एक सुकून देना चाहते हैं, कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो जितना आप दाद देंगे, जितना उनको सुनेंगे, उतना ही सबके लिए बहुत अच्छा होगा। ये दूसरा मैसेज है अदिशिता चतुर्वेदी, बहुत सुंदर। गोयल जी बहुत, अर्धाना श्रीवास्तव लिख रही हैं गोयल जी बहुत सुंदर प्रयास आपका। आशा गोयल लिख रही हैं अति उत्तम, सर्वोत्तम। रवि शर्मा जी ने फिर लिखा है वाह वाह खूब। चतुर्वेदी जी रंजिश को सही दिल रंजिश हो सही दिल ही दुखाने के लिए क्या है। स्नेह श्री झा वाह। इरशाद इरशाद समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट, आहा क्या बात है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। आहा आराधना श्रीवास्तव क्या बात है गुरुजी, वाह वाह। देवपाल शर्मा वेरी नाइस। सुखदेव जी मेहंदी हसन की यादें। अधिष्ठा चतुर्वेदी है थम्स अप। आराधना क्या बात है। पंकज आर शर्मा जय हो गुरुजी के लिए। बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं, आप भेजते रहिए, हम उन्हें बोलते रहेंगे आप लोगों का। हाँ तो अब मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा एक बात, आगे बढ़े उससे पहले, कि आप पहले तो आप मथुरा में थे, अब आप उसके बाद मुंबई में आए, तो आपने क्या किया जिससे आप एकदम फेमस हो गए? क्योंकि जब मथुरा में थे ठीक है आप फेमस थे, लेकिन मुंबई में आके अपना एकदम नाम कमाना ये बहुत बड़ी बात होती है। संक्षिप्त में बता दें। जी जी, संक्षिप्त में ये है, मैं अपने ऊपर जो कुछ मानता हूँ वो अपने गुरु जी की कृपा, आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, क्योंकि और हार्ड वर्क जो होता है, हार्ड वर्क मैंने आके यानी 12-12 घंटे 14-14 घंटे जो है केवल म्यूजिक में ही जा रही है बस हमारा पूरा। तो यहाँ आके जिस तरह से मैंने किया, और फिर
कल्याण जी भाई जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। और उन्होंने ऐसे कद्रदान थे कि उन्होंने मेरा ध्रुपद सुना 45 मिनट, और 45 मिनट सुनने के बाद में बोले क्या बात है। तो उस समय अलका याग्निक जी, साधना सरगम जी सभी थे। बोले ये दुर्लभ चीज़ है ये ध्रुपद। तो बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कुछ मुझे ऐसा सुनाया जो मूर्छना क्रम, जो हारमोनी जिस तरह से होती है वेस्टर्न म्यूजिक में, वो सुन के मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनसे कि यानी एक राग चल रहा है और उसी में वो सा को मान के रे को सा माने। जैसे गुर्जरी तोड़ी चल रहा है, अब गुर्जरी तोड़ी में रे को सा माना वृंदावनी सारंग बनने लगा, गा को सा माना बागेश्वरी बनने लगा। वो सुन के मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा देखो क्लासिकल तो हमने इतना किया, लेकिन क्लासिकल में भी इतनी सारी खोज इन्होंने जो की है वो बड़ी तारीफ के लायक थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। बोले मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप तो इतना ध्रुपद गाने के बाद। तो तो बड़ा उनसे वो हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे सीख के रहूंगा। फिर वो चलिए। बोले कि अच्छा मेरी सिटिंग में आप आके बैठना। तो इस तरह से कल्याणी भाई का बहुत सपोर्ट मिला। और उन्होंने एक बात मुझसे बड़ी अच्छी पूछी गोयल साहब, कि बोले आप एक राग को कितनी देर गाते हैं। मैंने कहा साहब 1 घंटे 1.5 घंटे तो हो ही जाता है। तब बोले कि यदि हम कहें कि 3 मिनट में उस राग को आप गाएंगे तो 3 मिनट में कैसे सुनाएंगे। मैंने कहा साहब 3 मिनट में तो तानपुरा भी नहीं मिलेगा। किशोरी अमोनकर जी जो आधे आधे घंटे में तानपुरा मिलाती थी स्टेज पे। जी। तो मैंने कहा 3 मिनट में तो सा भी नहीं लगी। बोले नहीं हो गया। बोले अटैक करना है आपको पब्लिक में 3 मिनट में ही आपको। तो मैंने कहा हमको नहीं होगा। उन्होंने झट सुनाया मुझे, और साधना जी और अलका याग्निक जी झट उन्होंने एक गाना सुनाया जो कि उनकी कंपोजिशन थी। उसमें राग सारंग बैरागी में, फिल्म ईमानदार में कल्याणी भाई ने राग के ऊपर बनाया था वो गाना। और 3 मिनट में उन्होंने वो गा के और मुझे इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। फिर मैं बोला कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो इतना अच्छा गुरु मंत्र मिला कि उसके बाद में, जैसे अब यहाँ पे जो गुणी लोग, जहाँ समझदार लोग बैठे हैं, तो वहाँ तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे राग को गाते हैं। जहाँ आम लोग बैठे हैं तो उनको हम 3 मिनट में सुना सकते हैं। तो उस तरह का, जैसे मैंने राग यमन में आपको सुनाया जी जी। है ना, तो वो 3 मिनट का है। चलिए अब तो इस तरह अगला से अगला चलें। जी अगला जी जी। अगला। तो राग, हाँ, तो आज हम राग यमन के ही ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी जी। इसलिए तो तो उसमें एक एक मुखरा अंतरा सुना रहा हूं मैं। तो फरीदा खानम जी की गजल उसमें, आज जाने की जिद ना करो, हाँ। बहुत सुंदर, जो कि अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। और उसी पर एक शायर कहते हैं कि जा रहे हो तो ये दस्तूर निभाते जाओ, मुझ पे झूठा कोई इल्जाम लगाते जाओ। जा रहे हो तो ये दस्तूर निभाते जाओ, मुझ पे झूठा कोई इल्जाम लगाते जाओ। लोग पूछेंगे वजह मुझसे जुदा होने की, कोई अच्छा सा बहाना तो बताते जाओ। वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, आज जाने की जिद न करूं, आज जाने की जिद न करूं, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट
जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करूं, आज जाने की जिद ना, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हेमलता भंडारी जी लिख रही हैं, वाह वंडरफुल, वाह वाह। पंकज शर्मा, क्या बात है, मस्त, 1 नंबर गुरुजी। आराधना श्रीवास्तव, गुरुजी की मेहनत, पूरा समर्पण संगीत के लिए। रवि शर्मा, क्रेडिट आपको जाता है गोयल साहब की, ऐसा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया इस कोविड ग्रस्त मौसम में। आराधना श्रीवास्तव, गोयल जी, गुरुजी, लता जी से भी मिल चुके हैं। ये बात हम आपसे बाद में करेंगे, जरूर पूछेंगे जरूर कि आपका लता जी से बात हुई तो क्या रहा। और इसके बाद बहुत सारे मैसेज लगातार चले आ रहे हैं। आराधना श्रीवास्तव, मोरे घर आए सजनवा, अधिष्ठा चतुर्वेदी, वाओ। आराधना श्रीवास्तव, वाह। पंकज शर्मा, संगीत और संगीत से ही सब मिलता है, संगीत और संगत से ही सब मिलता है। पंकज शर्मा, वाह क्या बात है। स्नेह श्री झा, क्या बात है। पंकज शर्मा, वाह वाह। दिव्यपाल शर्मा, बहुत खूब, वाह वाह। अधिष्ठा चतुर्वेदी, बहुत सुंदर। आराधना श्रीवास्तव, जय हो। राधा वल्लभ चतुर्वेदी, श्री यमुना जी की कृपा बनी रहे, बहुत सुंदर। जय गोपाल। समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट, आज जाने की जिद ना करो, वाह वाह। फरीदा खानूम। पुरुषोत्तम शर्मा, गायकी में सजता, साधना में अध्यात्म का समावेश, गुरु के प्रति अटूट भक्ति ही कलाकार को बुलंदी पे ले जाती है सर। वो सब कुछ पंडित जी में प्रचुर मात्रा में है। Very good. Means that everything, if you are dedicated to your guru, you will go to any heights, and Pandit Sukhdev Chaturvedi is having everything in him. Sundar, ati sundar. Pankaj Sharma, Sneha Shri Jha, वाह वाह। पंकज शर्मा, तबला भी मस्त, लाजवाब पेशकश। आराधना श्रीवास्तव, वाह वाह। मीनाक्षी श्रीवास्तव, प्रणाम। मीनाक्षी श्रीवास्तव, गुरुजी पारस मनी हैं। हेमलता भंडारी, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, संगीत जय हो, क्रेडिट गोज टू यू श्री गोयल जी। लखन अग्रवाल, वाह वाह क्या बात है। लगातार मैसेज आ रहे हैं। रवि शर्मा, बेहद उम्दा, ब्रेन स्टैक्स, ये कौन है, कोई उन्होंने भेजा है। तो बहुत बढ़िया, आपके बारे में कितना बढ़िया चल रहा है। अब आप इसके बाद क्या सुनाना चाहेंगे देव जी? जी हाँ, थैंक यू सो मच। पहले तो सभी जो हमें इस तरह से मैसेज कर रही हैं, वो जिनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उनके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और अब हम बॉलीवुड के ऊपर हम बात करेंगे कि राग यमन में एक, क्योंकि ये राग, इसमें माँ तीव्र लगता है, केवल एक स्वर जो है वो तीव्र लगने से और ये राग बन गया, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो इसमें जो पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो सब रागों के जानकार होते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी नहीं होते तो लता जी नहीं होती, आशा जी, आर डी बर्मन यदि नहीं होते तो आशा जी नहीं हो पाती। इन लोगों के पास में जाके सिंगर को सीखना पड़ता था, रिहर्सल करनी पड़ती थी। तो क्योंकि वो इस तरह की कंपोजिशन बनाते थे कि वो उसको सिंगर को, आज क्या हो गया है कि आज सिंगर को फोन करते हैं तो उनके सेक्रेटरी कहते हैं
कि हाँ आप डेट बता दीजिए कभी वो, और वो सिंगर बतलाएंगे। वो गए और स्टूडियो में एक दो बार कंपोजिशन सुनी और उन्होंने गा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले, तो उसको दो दो चार चार सिटिंग करके सिंगर के माइंड में बिठाया जाता था, पूरी सिचुएशन पूरा जो, फिर गाने को लाते थे। और राग बेस होता था उसका। तो इसी में मैं आपको फिल्म सरस्वती चंद्र का चंदन सा बदन, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था इसमें। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे अंगारी, ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंचल सा बदन चंचल चितवन। बहुत बहुत खूब। सरस्वती चंद्र पिक्चर रिलीज हुई थी 1968 में। इसमें नूतन और मनीष जी ने काम किया था। मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने दोनों ने अपनी 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 स्वर में गाया है अलग अलग, और म्यूजिक जैसा आपने बताया कल्याण जी आनंद जी का था। नेक्स्ट कौन सा सुना? नेक्स्ट जो है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होते रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँवों में रहने दो, एहसान तेरा होगा। बहुत 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 खूब। और ये मूवी थी जंगली, 1961 में रिलीज हुई थी। शम्मी कपूर, सायरा बानू द मेन एक्टर्स। मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने अलग अलग इस गाने को गाया है। शंकर जयकिशन जी का इसमें संगीत था। और हम पे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। अमन वैद चैरिटेबल ट्रस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित सुखदेव चतुर्वेदी, पंकज आर शर्मा, लाल गोयल सर, यू आर वेरी गुड पर्सन। मुझे ना कहें, आज के हमारे गेस्ट हैं उनको कहिए
इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आराधना श्रीवास्तव माय फेवरेट सॉन्ग वाह वाह, समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट लाजवाब, पंकज आर शर्मा गोयल सर आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदिष्टा चतुर्वेदी ने हाथ जोड़े हैं, आराधना श्रीवास्तव बहुत खूब, देवपाल शर्मा माय फेवरेट सॉन्ग वेरी नाइस, सुखदेव जी डीजे बस बंदिश माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, अलका चतुर्वेदी बहुत सुंदर, अनीता चोपड़ा राधे राधे सर जी, पंकज आर शर्मा क्या बात है, बहुत सुंदर गुरुजी, रवि शर्मा आहा सुपर डुपर चतुर्वेदी सर, दीपक गोयल वाह क्या बात है, आराधना श्रीवास्तव मेलोडियस सॉन्ग, समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट क्या बात क्या बात क्या बात, पुरुषोत्तम शर्मा गोयल जी आपको भी नाम, आप संगीत की सेवा कर रहे हैं, आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हेमलता भंडारी जी एक्सलेंट कंपोजिशन, वेरी म्यूजिकल मूविंग, मैजिकल मूविंग, soothed and overwhelmed, touching our hearts, and outstanding performance. Thank you, Mr. Goyal. रितिका रुंगटा, पंकज आर शर्मा, लवली सॉन्ग, रितिका रुंगटा हाथ जोड़े हैं। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी बॉलीवुड की काफी स्टार्स हैं जो आपकी शिष्य हैं, जो आपने थोड़ा बहुत उन्हें सिखाया है या जिन्होंने आपसे बहुत सीखा है, क्या थोड़े किसी के नाम वाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए? जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं कल्याणी भाई के यहाँ गया तो एक दिन उन्होंने पूछा आपने कितने राग किए हैं, तो मैंने कहा 400 राग, 400 राग। बोली अच्छा 400 राग मुझे लिख के दे सकती हो? वो प्रैक्टिकल बहुत थे, तो मैंने करीब 5-6 पेज में मैंने कहा 2-3 दिन दीजिए, तो मैंने 400 रागों के नाम दिए। तो वो कोई भी आता था बोले ये 400 राग जानते हैं पूरी इंडस्ट्री में, बोले कि नंबर 1। तो बड़े मुझे रिकॉर्ड देने लगे। फिर एक दिन बोले कि इन सबको रियाज करवा के लाओ मेरी क्लास में। तो उसमें श्रेया घोषाल भी थी, उसमें जावेद अली भी थे, उसमें सोनाली वाजपेयी भी थी, तो सब लोगों को लेके और मैंने उनको रियाज करवाए, 1 घंटे रियाज करवाए। फिर कल्याणी भाई बोले कैसा लगा? सबसे अपन नहीं गए, अपन अपने उधर रहे और क्लासरूम उनका अलग था पेडर रोड पे। तो उन्होंने फिर पूछा, तो सोनाली जी ने बोले अंकल इतना अच्छा लगा कि आज पहली बार मतलब लगा कि हाँ कुछ हमने कुछ रियाज किया। तो फिर उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ कि वो बोले कि क्लासिकल तुम इन लोगों को रियाज करो, और ये सब पूरा ग्रुप आपका है। तो भगवान की कृपा से तो वो 400 राग की मैं बतला रहा हूँ, है ना। और मैंने लिख के दिए, बोले मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, कोई भी राग? मैंने कहा पूछिए। तो उन्होंने खंबावती पूछा मुझसे, उन्होंने नारायणी पूछा, मैंने तुरंत उनको गा के सुनाए। तब से वो इतना मुझे वो करने लगे। तो वहाँ बहुत सारे सिंगरों को जो मैंने नाम लिया उनको सिखाया। फिर मेरे पास में प्रीति पिंकी जो डांडिया क्वीन, डांडिया बहुत करती हैं, गरबा, हाँ बिल्कुल। और हाँ, उनका वो गाना निकला था पिया पिया वो पिया पिया, हाँ, जो उसमें हर दिल जो प्यार करेगा, बहुत फेमस है। वो हाँ वो मेरे पास में सीखी। फिर अपना मीत ब्रदर्स, ये दोनों भाई जब आए थे ग्वालियर से, जो जिनका ओ माई गॉड में बेबी डॉल और वो सारे जो गाने उनके म्यूजिक डायरेक्शन में, ये दोनों भाई जब आए तो ये दोनों एक्टिंग के लिए आए थे और ये हमारे पास सीखने के लिए, तो म्यूजिक के लिए। तो बोले हम भी ऐसा कर सकते हैं म्यूजिक में, म्यूजिक डायरेक्टर या प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, ऐसा कोई काम मुश्किल नहीं। तो इन्होंने मेरे पास में सीखा और आज भगवान की कृपा से वो अच्छे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। ऐसे गजेंद्र चौहान जी जो युधिष्ठिर महाभारत सीरियल, वो मेरे पास में सीखे। शेखर सुमन जी वो भी हमारे पास में म्यूजिक सीखे। और जो पॉप सिंगर, सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की बोले, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू, वो जो है वो शुरू में, हाँ। तो ऐसे करके बहुत सारे सिंगर हमारे पास में सीखे और अभी भी सीखते रहते हैं। डॉक्टर अशोक चोपड़ा जी के बारे में बतलाना चाहूंगा, जो प्रियंका चोपड़ा के फादर जी, वो हमारे पास में लगातार जब तक वो लास्ट टाइम तक, फिर वो हमें इतना मानने लगे थे कि आज भी जब प्रियंका मिल जाती हैं या
डॉक्टर मधु चोपड़ा जी, हम कोई फंक्शन में बुलाते हैं तुरंत हमारी फैमिली से वो हम उनके फैमिली गुरु बन गए। और इनका मैंने 2 एल्बम भी किए जिसमें पवन चोपड़ा जी, परिणीति चोपड़ा जी के जो फादर, वो जी दोनों भाई डॉक्टर अशोक चोपड़ा जी और पवन चोपड़ा जी, तो वो मुकेश की आवाज में गाते थे, ये पवन चोपड़ा जी, और ये रफी साहब की आवाज में डॉक्टर अशोक चोपड़ा जी। तो इन दोनों का एक 2 एल्बम मैंने टी सीरीज से रिलीज भी हुए, वो हमने उनको एक भजन एल्बम दोनों को गवाया था, उसमें मेरी कंपोजिशन थी और मैंने उनको सिखाया और फिर हमने गवाया। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत 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 खूब सुखदेव जी। अब अगला क्या पेश करना चाहिए? जी जी जी। इसके बाद में हम, क्योंकि राग यमन से ही आज हम बने हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे राग जो है ना, इतने अच्छे। चतुर्वेदी जी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आज यमन में रहेंगे, आगे भी अब आपको बुलाया करेंगे, उसमें अलग अलग राग लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है एडू बेंच है, उसमें हमें लोगों को एजुकेशन एंटरटेनमेंट की देनी है। एंटरटेनमेंट तो सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन उसको किस तरह एजुकेट किया जाए, जो आज आप इतना बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ हमारे सब दर्शक viewers are getting very much enlightened and educated with your such type of such a divine performance. जी, और मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, एक कलाकार खुले विचार का होता है। तो एक बात ये बताना चाहूँगा, हम और आप आज बहुत वर्षों के बाद मिल रहे हैं। आपको ये शायद पता हो कि हम मथुरा मेरी जन्मभूमि रही है, और मेरा जो म्यूजिक कैरियर है वो आपके यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। आपकी मम्मी जी जो हैं, हमें लगता था कि हमारी मम्मी हैं, डॉक्टर स्वराज लता गोयल जी सबसे पहले बोले, माँ साहब हमारी बहू को जो है म्यूजिक सिखाना है। मैंने कहा ठीक है। तो आशा गोयल जी, दीपक भाई साहब की वाइफ, तो उनको मैंने म्यूजिक सिखाया। गौतम, उनके लड़के 1 साल के होंगे, तो वो बेचारी बहुत बिजी थी। तो एक दिन मैं गया, बोले अच्छा, अरे आशा तुम नहीं आए? तो बोले लाओ हमको सिखाओ। वो इतनी सोशल और इतनी मतलब हरफन मौला थी कि उन्होंने कहा लाओ हमको सिखाओ। 10 मिनट उन्होंने, तो हमने एक गजल सुनाई, पराई होके मोहब्बत में आरजू ना करो। तो वो गजल उन्होंने गाई, इतने में ढेर सारे मरीज इकट्ठे हो गए, लाइन लग गई। जो माता जी बोली बस आज की क्लास हो गई, आप आते रहिए। और इस तरह से तो वो उन्होंने हमको सारे डॉक्टरों में फेमस कर दिया, मथुरा वृंदावन सारा। तो ये सब संयोग है कि इतने वर्षों के बाद में, ये मैं 30 साल 35 साल पहली बात बता रहा हूँ, 35 साल 25 साल तो मुझे बॉम्बे हो गए आए, और फिर इतने वर्षों के बाद में हमारा आपका संयोग हुआ है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत थैंक्स गुजार हूँ, इसके उन्होंने फिर हमको मिलाया, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसे संस्मरण सुनाए, से मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला शुरू करें अपना कार्यक्रम। जय 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 जय। हाँ, तो इसमें भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और
बहुत 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 खूब। ये भूली हुई यादें, द पिक्चर वाज संजोग इन 1961, स्टारिंग प्रदीप कुमार एंड अनीता गुहा, sung by मुकेश एंड म्यूजिक मदन मोहन। और हमें मैसेजेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। नितेश कोचर हाथ जोड़ रहे हैं, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी ने हाथ जोड़ा है। नितेश कोचर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट ने हाथ जोड़े। रवि शर्मा, वाह गोयल साहब, क्या हस्ती से आज आपने तारुफ करवाया है, धन्य हैं आप। अधिष्ठा चतुर्वेदी, बहुत मजा आ गया सुन के। मीनाक्षी श्रीवास्तव, राग यमन इज माय फेवरेट। अविनाश भार्गव ने भी बहुत आपको ब्लेस वो भेजे हैं, नमस्कार। सन्मय चतुर्वेदी ट्रस्ट, एवरग्रीन राग है, राग यमन सुनकर दिल झूमने लगता है। अनीता चोपड़ा, बिल्कुल सही। अनीता चोपड़ा, कितना नॉलेज मिल रही है। हेमलता भंडारी, stimulating with music and spirituality made this Saturday morning very special. The enthralling formulations with rhythms and melody, the credit goes to you and Gyan Foundation. आराधना श्रीवास्तव, सुंदर गीत, भूली हुई यादें। दिव्यपाल शर्मा, वेरी नाइस। सुखदेव जी, ऑल नंबर आर वेरी चेकिंग। आराधना श्रीवास्तव, वाह वाह। लगातार मैसेज आ रहे हैं। सुखदेव चतुर्वेदी जी, आपका कहना क्या? If in case any of our viewers want to learn Indian classical music online and offline, join Pandit Sukhdev Music Gurukul. For further inquiry, contact him on 98201 60066. Another number is 99201 60066, and his email is psmgurukul@gmail.com. हाँ सुखदेव जी, अब आप अगला क्या सुनाना थैंक यू। चाहेंगे? जी जी जी, एक में, और क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हर प्रोग्राम में, जैसे हम एक आर्टिस्ट के हिसाब से बता रहे हैं, तो सब लोग खुशी का गाना चाहते हैं कि एक खुशी, जी, अरे वो पुराने सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। जबकि दर्द में जो एक एहसास होता है, जो एक खुशी होती है, वो जो एक आनंद है, वो भी अलग है बिल्कुल। तो जो पहले पहले जो सुनने वाले थे वो इन्हीं गानों को ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सब लोग जो है केवल वो उसका फास्ट म्यूजिक, जैसा समय चल रहा है तो उस हिसाब से। तो ये जो गाने बन गए, उनका कोई आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी खुशबू वही है। तो मैं ये वाला आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, जो मुकेश जी का गाना है, आपको बतला दूं, इसमें झपताल 10 मात्रा में ये गाना कंपोज किया गया है। नहीं तो अक्सर 8 मात्रा में 80% गाने जो है वो बॉलीवुड सॉन्ग जो है वो 8 मात्रा कैरवा ताल में बनते हैं, 2/4/4/4 में बोलते हैं उसको। और ये 10 मात्रा में, जब तक क्लासिकल नहीं आएगा, मैं बतला रहा हूँ कि ये गाना नहीं गाया जा सकता है समझ के। तो इसलिए वो गाना जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। केवल कॉपी करना गाना नहीं होता है, समझ के गाना है ना, और हमने वो ही किया है। तो मैं आपको ये ताल पहले बता रहा हूँ। एक बार उस्ताद ताहिर हुसैन खान साहब से मैं बोलूँगा कि वो जरा झपताल बजाएं और फिर हम इस गाने को शुरू करें। इसके बोल और जरा बोल के बतलाएं आप। धीना धी धीना धीना धी धीना धी। ये 10 मात्रा की ताल है। अब इसको मैं आंसू भरी जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़
हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी। बहुत बहुत, ये भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना रहा है। एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम फिल्म परवरिश. It is released in 1958, starring Raj Kapoor, Mala Sinha, and Mahmood. The song was sung by Mukesh, and the music director was Datta Ram. Regularly हम पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं. अनीता चोपड़ा, टोटली क्रेडिट गोज टू यू. प्रीति अग्रवाल, मुझे बहुत गर्व है सुखदेव जी व राखी पर. प्रीति अग्रवाल ने आगे लिखा है, मैंने भी सीखना शुरू किया था. चंचल काबला लहरी, गुरुदेव सादर प्रणाम. आराधना श्रीवास्तव, वह बहुत सुंदर गीत, मेरी पसंद का. मैसेजेस वी आर रिसीविंग रेगुलरली. सो अब आपने जब इतना सब कुछ किया है, तो एक मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा. अभी एक पंकज शर्मा जी का भी आप मैसेज आ गया है, वाह वाह क्या बात है. आप विदेश यात्रा भी करके आए, आपने विदेशों में भी प्रोग्राम किए, तो ये कब कैसे शुरुआत हुई आपकी, संक्षिप्त में लेके. हाँ जी जी, 2000 में मैं लंदन गया था पहली बार. तो जब मैं लंदन गया तो एक वहाँ पे राम बाबा करके, जो कि 90 साल की एज, और वो हनुमान जी के परम भक्त हैं. एवरी सैटरडे 108 हनुमान चालीसा रहता है उनका, और उनके 1500 भक्त, तो पूरा जो है वो साथ में बोलते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा ने हमको बुलाया और हम पहली बार लंदन गए. लंदन में हमारा धीरे धीरे करके इतना फैल गया कि हमारे 20 पाउंड टिकट रख के प्रोग्राम होने लगे. और एक प्रोग्राम ऐसा हुआ कि बारेंद्र भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद से बेस्ड हैं, वो बहुत शौकीन. एक दिन हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनको अपना बायोडाटा दिखाया. बोले मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एक दो चीज सुनी, मैं समझ गया आप क्या है, मुझे सिखा सकते हैं क्या. मैंने कहा बिल्कुल. अब उन्होंने सीखना शुरू किया. फिर उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल सबको बुलाया. वो बहुत एकदम धनवान व्यक्ति, और जैसे मतलब वहाँ पे 10 मेडिकल फॉर्मेसी बहुत सारे जो उनके, तो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया, हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक. तो मेरा, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप, मैं ज्यादा घमंड तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप किसी भी कलाकार को, तो वो टाइप बड़े होते हैं. वो जो गजल गाएंगे तो गजल ही गाएंगे, क्लासिकल ख्याल गाएंगे तो ख्याल ही गाएंगे. मैंने अपने आप को, मैंने बताया ना कि मैंने हार्ड वर्क किया है, हर चीज को सीखा है. तो इतना आप द्रौपदी भी सुनेंगे तो द्रौपदी में भी मैंने काफी जो है बंदिशें ऐसी गाई हैं, कुछ अपनी कंपोजिशन करके भी गाई, जो दरभंगा घराने से सीखा, उसी को फॉलो करते हुए. तो ये बात मैं कहना चाहूंगा. तो मेरा 6 घंटे प्रोग्राम लंदन में चला, बहुत खूब, बहुत 8 बजे से और 2 बजे तक. तो हमने वही 3 मिनट वाली, जैसे 10 मिनट में हमने ध्रुपद भी गाया, हवेली संगीत भी गाया. फिर उसके बाद में फिर हमने कुछ मन्नाडी के सॉन्ग, गजल गाई, ठुमरी गाई, सब कलर दिखाई हमने, ख्याल भी गाया. तो वहां के एक बहुत बुजुर्ग बोले कि मैं गुजरातियों को हिंदी सिखाते हैं. तो उन्होंने अपना कमेंट किया कि मैंने पंडित सुखदेव चतुर्वेदी के अंदर जो गहराई देखी है, कि जब हम क्लासिकल सुनते हैं तो लगता है कि हाँ कोई अच्छा, मतलब एकदम क्लासिकल वो गा रहे हैं, और जब लाइट सुनते हैं तो लाइट का कलर दिखता है. तो ये बहुत बड़ी विशेषता है. तो ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 20-20 पाउंड के आपके टिकट्स गए, that the tickets were sold for 20 pounds each, and he has performed for 6 hours continuously in London. That is a very very great thing. Now what is your, आप क्या next जी, इसके बाद हम सुनाएंगे, क्योंकि राग यमन पे हम चले. जी. तो इसमें एक लता जी का बहुत सुंदर गाना है, जिया ले गयो मोरा सांवरिया. जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागे मन में लगन हुई बाबरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया.
पनी नि नि रे 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 म म म ध प म ग रे नि रे 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 म म म ध ध ध ध नि ध नि प ओ पपी है तूने पपी है देखे मोरे सैया देखे तो ले लेगा उनकी बलैया जा रे दीवाने मारना ताने पिया की सुन जाके बांसुरिया जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया. बहुत खूब. And this song Jia Le Gayo is from Unpad, and in 1962 Dharmendra Mala Sinha was the main cast, sung by लता मंगेशकर जी and music by मदन मोहन जी. और मैसेजेस हम पे लगातार चले आ रहे हैं. पंकज शर्मा जी लिख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है. दिव्यपाल शर्मा, सुखदेव जी is given very good knowledge of music. रितिका रुंगुता, वेरी नाइस सर. पंकज शर्मा, तारीफ करूं क्या आपकी जिसपे माँ का आशीर्वाद हो. हेमलता भंडारी, एक्सीलेंस म्यूजिकल मेलोडी, वाओ वंडरफुल. आराधना श्रीवास्तव, स्वीट सॉन्ग. नितेश कोचर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस प्रोग्राम के जरिए हमें फिर से हमारे गीतों को जिंदा कर दिया. पंकज शर्मा, क्या बात है, बहुत सुंदर. प्रीति अग्रवाल, जिंदगी बहुत नीरस हो रही थी, आपने एक रास्ता दिखा दिया. रवि शर्मा, दिव्यपाल भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक इस संगीतमय सफर की शुरुआत करवाने के लिए. मजा आ गया. चरण स्पर्श आपको और गोयल साहब को. आराधना श्रीवास्तव, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर लगा. ऑल द मैसेजेस. दिव्यापाल शर्मा, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग राग यमन इन डिटेल, टू गुड. दीपक गोयल, बहुत खूब. एनी सॉन्ग फ्रॉम न्यू कंपोजिशन. तो देखिए लगातार हम पे मैसेजेस आ रहे हैं. अब अगला आप क्या सुनाना चाहेंगे? एक में, क्योंकि ये फिल्मी तो जैसे चल ही रहा है, अब जी. राग यमन में मैंने एक जो कंपोजिशन अपनी की जी. वो अभी आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हमने म्यूजिक डायरेक्शन का भी काफी काम किया है. तो राजेश जौहरी जी, जिनके बहुत सारे गाने आपने देखा होगा, सानी धपा मागारी सा, जो कृष्णा करके हरिहरन जी का लेडली का जो एल्बम, वो उनके ही सॉन्ग थे और काफी फिल्मों में भी उन्होंने लिखा. तो उन्होंने मुझे शुरू में 5 गाने दिए थे. तो एक गाना में उनका राग यमन में मैंने जो कंपोज किया है, उसके बोल हैं आज चांद की रोशनी मध्यम मध्यम. है आज चांद की रोशनी मध्यम मध्यम. है आज चांद की रोशनी मध्यम मध्यम. याद आ गई जो तेरी, याद आ गई जो तेरी, बढ़ गया दिल का गम. है आज चांद की रोशनी मध्यम मध्यम. धुंधला गए हैं सितारे, आकाश भी रो रहा है. धुंधला गए हैं सितारे, आकाश भी रो रहा है. सोए नहीं एक पल भी, सारा शहर सो रहा है. टूटे हुए ख्वाब लेकर जाएं कहाँ आज हम. है आज चांद की रोशनी मध्यम मध्यम. बहुत खूब, बहुत खूब. So viewers, in this COVID time when the lockdown is on and off, but still the senior citizens are inside, the children are inside. If anybody wants to learn Indian classical music online and offline, join Pandit Sukhdev Music
Gurukul. For further inquiry, contact him on his mobile number 982-016-0066. Another number is 91 +91 99201 60066, and his email is psmgurukul@gmail.com. And you can also log into Global TV, and you will find all these details in case if you could not write down all these things right now. We are still getting the messages. Divpal Sharma, first time I am listening. Rag Yaman in detail, too good. Aradhana Srivastava, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गुरुजी हैं. अविनाश भार्गव, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति. नितेश कोचर, वाह वाह, अति सुंदर. वी आर रिसीविंग मैसेजेस कंटिन्यूअसली. अब हम आपको ये जरूर पूछना चाहेंगे, क्या आप वो भेंट बताएंगे जब लता जी से आपकी भेंट हुई? लता जी से ऐसा हुआ कि जब एक उनका यहाँ पर स्टूडियो है, स्वर लता करके, और बंगलो अंधेरी में, तो स्वर लता करके एक उनका स्टूडियो है. वहाँ मेरा एक भजन एल्बम चला था तब, अष्टक माला. तो जो रिलायंस के हमारे श्री DN चतुर्वेदी जी, उनके गुरु जी के लिए वो हम कॉन्सेप्ट बना रहे थे. उसमें एक भजन जो है वो सादा सरगम जी ने गाया मेरे साथ में, और सारी रचनाएं वो सब मैंने उसको कंपोज किया. तो वो लता जी उस समय एक गणेश वंदना गाने के लिए आई थी उधर. तो स्टूडियो में आई, जैसे उनको पता लगा कि मैं ध्रुपद गायक, क्योंकि जो स्टूडियो के मैनेजर हैं मयूरेश, तो वो किसी टाइम में मेरे पास सीखने आते थे. फिर वो वहाँ के मैनेजर बन गए. लता जी का बहुत उनको काफी वो था. तो फिर उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई. जैसे उन्होंने सुना ध्रुपद आप दरभंगा घराने से, तो बड़ा एकदम, फिर मुझसे करीब 10 मिनट उनकी बातचीत हुई और बोले क्या बात है, वहाँ ध्रुपद गायक तो अभी बहुत कम है, और आपको ये सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई, मतलब एकदम. तो फिर उनसे हमारी यही चर्चा हुई ध्रुपद के बारे में. ऐसा सौभाग्य मिला. बहुत बड़ी बात है सुखदेव जी कि आप जो मतलब इंडिया की एक कोकिला, और क्या नाम उनको दें, भारत रत्न पिताजी को, और उन्होंने जब आपका इतना आपसे बात की, बहुत सौभाग्य की बात होती है. अब आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी. अब क्योंकि समय होता जा रहा है, हमारे पास तो बहुत सारा कुछ है मटेरियल. जी तो जी मैं जी. तो मैं एक KL सहगल साहब का अभी बीच में से थोड़ा जंप कर रहा हूँ, क्योंकि गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा जंप करके तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सहगल साहब एक ऐसी हस्ती हुए जिनको मुकेश जी ने भी उनका टोन पकड़ा शुरू में, किशोरदा ने भी उनका टोन पकड़ा था, और सहगल साहब के ऐसे फैन देखे मैंने कि जो सहगल साहब के सामने किसी को कुछ समझते नहीं. जब मैं मथुरा ही रहता था तो एक योगेश शर्मा जी, उनके बड़े भाई थे, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, वो उनको पूरी हिस्ट्री मालूम थी सहगल साहब की. तो मैं उनके यहाँ रहता था, तो बड़े अच्छा उनका प्यार था मुझे. तो तब मुझे यहाँ आके पता लगा, और जब मैंने सहगल साहब की ये कंपोजिशन, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा. ये इजी नहीं है, हर कोई सिंगर नहीं गा सकता. मैं क्या जानू, क्या जादू है, जादू है, जादू है. मैं क्या जानू, क्या जादू है, जादू है, जादू है. इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है. एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है. इन दो मत वाले नैनों में जादू है,
जादू है, जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा अब नैन मिलेंगे नैनों से, मैं क्या जानूंगा। जादू है, जादू है, जादू है। बहुत 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 ही पुरानी यादें दिला दी आपने, और मैसेजेस लगातार चले आ रहे हैं। स्पेशल थैंक्स फ्रॉम ग्लोबल टीवी, and then Chanchal Kabra Lahiri, waha kya baat hai Guruji. Hemlata Bhandari, outstanding performance with voice control and pitch, with exuberance, blended beautifully, with full of anguish and agony, elevating the performance, priceless and valuable performance. Anita Chopra, indeed learning about Rag Yaman, just learned the basic recently, but today it is a great knowledge day of Rag Yaman. Aradhana Srivastav, बहुत सुंदर. चंचल काबरा अगेन, प्लीज एक सुर ताल जरूर सुनाएं. पंकज आर शर्मा, हम दीवाने हो गए हैं आपके गुरुजी. पंकज शर्मा अगेन, लव यू गुरुजी. प्रीति अग्रवाल, गुरुदेव जी संभव तो कोई ध्रुपद भी सुनाइएगा. रवि शर्मा, लाजवाब सर. पंकज शर्मा, बहुत सुंदर कंपोजिशन. तो लगातार चल रहे हैं. अब अगला सुनाएं. जी, मैं अब कुछ नए गाने जो है एक दो सुनाता हूँ, जो कि राग यमन में जी आदि बर्मन साहब की जो लास्ट कंपोजिशन थी, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है. समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है. बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो. कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. बहुत खूब. और ये दिस वाज फ्रॉम द मूवी लव इज 1942, a love story. Anil Kapoor, Jackie Shroff, Manisha Koirala, and it was sung by both two artists, rather I must say, by the Lata Mangeshkar as well as Kumar Sanu, and as he has already mentioned, the music director R.G. Burman. And we are receiving the messages. Deepak Goel says, Sukhdevji, somebody remembering Sehgal in this time. It's a big thing. Hemlata Bhandari, no doubt, the melody gives a soul to us, wings to our mindset, and flight to our imagination, and jadoo in your voice, giving life to everything. Divpal Sharma, very nice song. I'm also singing now, very old memories. समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या बात है. सहगल साहब की वो बॉलीवुड म्यूजिक के मुर्दह कलाकार, उन्हें कोई नहीं भुला सकता है. रवि शर्मा, वाह वाह. अविनाश भार्गव, बहुत खूब. सुखदेव जी, दिवपाल शर्मा, बहुत खूब. कुछ ना कहो. समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट, पुराने गाने सुन को लो या नए राग यमन में, आपको वही निकार मिलेगा. अति सुंदर.
अब अगला क्या सुनाना चाहेंगे? हाँ, अब मैं जो है ये एक श्रेया घोषाल का वो जो नहीं नहीं सॉरी, ये लाल इश्क संजय लीला बंसाली जी का जो अच्छा, हाँ, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बेर इश्क 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 तुझ संग बेर लगाया ऐसा तुझ संग बेर लगाया ऐसा राह ना में फिर अपने जैसा हो राह ना में फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बेर। बहुत खूब. दिस मूवी वाज गलियों की रासलीला रामलीला. Singer was Arjit Singh ji and the artist Deepika Padukone and Ranveer Singh. अब messages still are coming, pouring in. Hemlata Bhandari, the acoustic melody of Yaman, कुछ ना कहो, expressed in a well manner. प्रीति अग्रवाल, आपके साथ पुरानी यादें ताजी हो गई. आराधना श्रीवास्तव, बहुत खूब, wonderful moment. आराधना श्रीवास्तव, बहुत खूब, wonderful moment again. And अब थोड़ा सा मैं भी अपनी कुछ फरमाइश रखना चाहूंगा, जो अभी आप मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं उसके बारे में भी. मन रे तू कहना धीरे धीरे, क्या बात, वाह वाह. आपने तो इतनी मतलब एकदम, कहते हैं ना कि यदि कान से नहीं होते तो तानसेन नहीं होते. इसलिए जब तक हीरा जो है, जब तक जौहरी नहीं होंगे तब तक हीरा को कौन समझेगा. तो आप जैसी जौहरी, आप जैसे कानसेन में भी आपका जो है बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ. वाह, आपकी बहुत ये मन रे तू काहे ना धीर धरी, इमेजिन गाना है. क्या बात है, रफी साहब जैसे सिंगर होना बहुत मुश्किल है. मन रे तू काहे ना धीर धरी, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे. मन तो काहे ना धीर धरी, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे. मन रे तू काहे ना धीर धरी. बहुत खूब. फिल्म चित्रलेखा का गाना आपने गाया. अब मैं चाहूंगा कि आप आखिर में जो भी आपका पसंदीदा गाना हो एक सुनाए. बात अपने पे समय अब खत्म हो रहा है, हालांकि मन नहीं भरा है मेरा भी और दर्शकों का भी, और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन हम आपको मैसेज आपको भिजवा देंगे. हाँ सुनाए जो भी आपका पसंद. नए गानों में एक वो जो मोह मोह के धागे, ये काफी फेमस हुआ है. मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे,
के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर आए सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर आए। बहुत खूब, बहुत खूब. And this movie was Dum Laga Ke Haisa and sung by Monali Thakur. Now we have come to an end of the program, so I would like you. If there is one song which was Saranga movie. I don't know how. Is it on Yaman? जी 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 Can you just Yaman. one line only, because the time is very Okay. short. ओके 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 Last. जी 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 सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिन दिन तर दिन में, हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, और आपका भी था हुसैन साहब. बहुत बहुत बढ़िया. आप लोगों ने कितना आज मधुर बना दिया सैटरडे को, हम सोच भी नहीं सकते. एंड इफ यू वांट टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जॉइन पंडित सुखदेव म्यूजिक गुरुकुल. फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट हिम ऑन 9820160066. I repeat, 9820160066, and email psmgurukul@gmail.com. We are getting lots of messages now. There is no time to say. So you have seen today that apart from our daily programs, which we are doing on the serious topics like COVID-19 impact or the current topics, today we have done a edutainment. Edutainment doesn't mean education and entertainment. It means the education of entertainment. We must learn what is entertainment. Today we have learned so much things from Surmani Pandit Sukhdev Chaturvedi ji about Rag Yaman, and I'm sure this program will be everlasting for many of us. We will be enriched by the knowledge, and we would like to continue these types of program at least a week, so that you all will be enlightened. And tomorrow again we are going for a serious topic again, media conference with Lal Goyal, COVID-19 impact on working women, and our panelist are Miss Neelam Sharma, personality development program trainer, the Winning Mantra Institute Noida, Miss Radhika Jang Gambhir, founder and CEO, the Good Karma Company, Wildflower Naturals, New Delhi. We have Miss Rudhira Sharma, Regional Director, Pupil Strong, New Delhi. And we have Miss Princey Jain, Senior Paid Marketing Specialist, Hyderabad. So please tune in tomorrow and for media conference with Lal Goyal at 10:30 p.m. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, और आपके संग जो आपने संगत की है हुसैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स for viewing this very, very musical program.